ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شہاب الدین ثاقب، خبر و نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کے ان اشعار پر بہت غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرزا نے کس کے لیے اور کیوں یہ اشعار کہے تھے، مگر اس شعر کو اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں تو بہت آسانی سے شعر کے مطلب تک پہنچ جائیں گے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سے یوگی آدتیہ ناتھ کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے کانوڑیوں کی گزرگاہوں پر موجود دکانداروں کو اپنی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کے یو پی سرکار کے حکم پر عبوری روک لگا دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ دکانوں پر صرف کھانے پینے کی چیزوں کے نام لکھے جائیں، دکانداروں کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے حکم کو این جی او ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ آج کی خبر و نظر میں اس خبر کے ایک ایک پہلو پر باریکی سے بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کے ٹی انڈیا کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے گی۔ بنارس میں آج ساون کا مہینہ ہے، ہمارے کانوڑی آئے ہیں، یہ بنارس کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ کیسے ہمارے کانوڑی آئے ہم ان کو پانی پلاتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں باہر سے، تاکہ اپنے گھر میں جا کے بتائیں بنارس میں کس طرح گنگا جمنی تہذیب ہے، کس طرح مل جل کے لوگ ہندو مسلمان رہتے ہیں۔ اور ہندو مسلمان سیاست کے بندھن سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی سیوا بھاؤ سے آئے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کے پورے ہندوستان کو سندیش دینے آئے ہیں۔ دیکھ لیجیے بنارس کا ہندو مسلمان کس طرح ترنگا، بھارت کا جو ترنگا اس کے بیچ میں کس طرح ہم سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ ترنگا ہمارا رسپانس کیا ہے؟ کوئی بھی بات نہیں ہے، یہاں پر سیوا بھاؤ کے لیے آئے ہیں، ہاتھوں میں ترنگا ہے، بھارت کا ہندو مسلمان سارے لوگ مل کے آ رہے ہیں۔ ہمارے کانوڑی جو آئے ہوئے فرق ہے جہاں پر ہم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے 22 جولائی سے شروع ہونے والے کانوڑ یاترا کے روٹوں پر موجود دکانداروں، ہوٹلوں اور ڈھابوں، ٹھیلوں کے مالکان کو اپنے نام کا بورڈ لگانے کا ایک غیر قانونی حکم جاری کیا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا، اس پر سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے۔ اپنی اینٹی مسلم سوچ سے یوگی جی نے ایک بار پھر سے ہندوستانیوں کو ہندو مسلمان میں بانٹنے کی کوشش کی تھی اور دکانداروں کو نام کا بورڈ لگانے کا غیر قانونی فرمان جاری کیا تھا، لیکن یوگی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہیں سپریم کورٹ نے زبردست چپت لگائی ہے۔ یہی نہیں، ان کی راہ پر چلنے والے اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی حکومتوں کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس بھیج کر جواب مانگا ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیلوں نے نام کی تختی لگانے کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے 2 ریاستوں نے ایسا کیا تھا، اب اور 2 ریاستیں ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ پولیس اس پر کارروائی کر رہی ہے، اقلیتوں اور دلتوں کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، وکیل نے سب سے پہلے مظفر نگر پولیس کا حکم پڑھ کر سنایا
जिसमें लिखा था कि पहले कांवड़ यात्रियों को गलत चीज़ें खिला दी गईं, इसलिए दुकानदारों को नाम लिखना ज़रूरी करार दिया जा रहा है। एक और दरख्वास्त गुजार टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि ये हुक्म रज़ाकाराना नहीं है बल्कि लाज़मी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी हक नहीं है। हरिद्वार पुलिस का हुक्म देखिए, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर नाम की तख्ती नहीं लगाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हज़ारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों का ज़रिए माश मुतासिर किया जा रहा है। ये शनाख्त की बुनियाद पर एक किस्म का बाइकाट है। नाम लिखो तो कारोबार बंद, नाम न लिखो तो ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म। अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि मुसलमान, ईसाई, बुद्ध तमाम इन कांवड़ यात्रियों के काम आते रहे हैं। आप सिर्फ सब्ज़ी शुद्ध शाकाहारी लिखने पर असरार कर सकते हैं, दुकानदारों के नाम लिखने पर नहीं। इसके ज़रिए मुआशी बाइकाट की कोशिश की जा रही है। छूत अछूत के अमल को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। उज्जैन में भी इंतज़ामिया ने दुकानदारों के लिए ऐसी ही हिदायत जारी की हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरला के एक शहर में दो मशहूर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का है और एक मुसलमान का है। मुझे ज़ाती तौर पर मुसलमान के रेस्टोरेंट में जाना पसंद था क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई ज़्यादा नज़र आती थी। अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट भी सिर्फ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और कैलोरीज़ लिखने की बात करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा 6 अगस्त को ख़त्म होगी, इसलिए इन अहकामात को एक दिन के लिए भी जारी रखना गैर मुनासिब है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुअज्जिज़ जजों ने कहा कि हमने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से तमाम सीनियर वकीलों को बगौर सुना। उन्होंने 17 जुलाई की मुजफ्फरनगर पुलिस की हिदायत को चैलेंज किया है और उसके बाद की गई पुलिस की कार्रवाई पर अपना एहतजाज दर्ज कराया है। हमने हिंदी में जारी करदा हिदायत और उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा देखा है, जिसमें लिखा है कि सावन के मुक़द्दस महीने में गंगा का पानी लाने वाले कांवड़िए कुछ अक़साम के खाने से दूर रहना चाहते हैं। बहुत से लोग प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। जज ने कहा कि दुकानदारों से कहा गया कि वो अपने नाम और अपने मुलाजमीन के नाम को ज़ाहिर करें। दरख्वास्त गुजार से मजहबी बुनियादों पर इम्तियाज़ी और अछूत को फ़रोग़ देने वाला करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लिखना काफ़ी है। जजों ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। इससे मुल्क के सेकुलर किरदार को नुकसान पहुंचता है, जो आइन के तमहीद का हिस्सा है। ये भी बताया गया कि कई मुलाजमीन को काम से हटा दिया गया है। इन बहसों और दलाइल को सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने खाने पीने के होटलों और ठेलों वगैरह पर नाम प्लेट लगाने के योगी हुकूमत के फ़ैसले पर अबूरी रोक लगा दी। अदालत उज़्मा ने कहा कि खाने पीने की दुकानों पर चीज़ों के नाम लिखे जाएं, दुकानदारों का और मुलाजिमों का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। अदालत ने इस मामले में न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश हुकूमतों को भी नोटिस भेजा है और हुकूमत के हुक्म पर जुमा को होने वाली अगली समाअत तक इस हुक्म को रोक दिया गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू है, मगर इससे कबल ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के एक मुतनाज़ा और नफ़रत पर मबनी मजहबी यात्रा पर हंगामा बरपा है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है कि कांवड़ यात्रा के रूटों पर छोटी बड़ी तिजारत के ज़रिया
रोजी रोटी हासिल करने वालों को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि वो अपनी शनाख्त को जाहिर करें। होटलों, ढाबों, दुकानों, यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी और ठेले लगाने वालों को भी नाम की तख्ती लगाने का हुक्म दिया गया था। इस पर कांग्रेस पार्टी के आला रहनुमाओं ने योगी और मोदी हुकूमतों पर सख्त हमला किया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि दुकानों पर उनके मालिकान के नाम का बोर्ड लगाने वाला नफ़रत अंगेज़ हुक्म आईन, जमहूरियत और हमारी मुश्तरका विरासत पर हमला है। उन्होंने इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस लेने और उसे जारी करने वाले अहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने सख्त नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि मुसलमानों से सामान न खरीदने की इस साजिश को समझिए। ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या में हारते ही वहाँ के हिंदुओं के बायकाट की बात करने लगे थे। उन्हें भगवान से प्रेम नहीं, ये मज़हब के नाम पर ढोंग करते हैं। गरीबों का बायकाट करने वाली हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की नफ़रत फैलाती है। लेकिन मेरा मुल्क मोहब्बत का मुल्क है और ये नफ़रत को हर बार हराता रहा है। नफ़रत का बाज़ार मत लगाइए। सेब अब्दुल फ़रोख्त करे या अनिल, बस मीठा होना चाहिए। वो कहती हैं कि कितना भी ज़ोर लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी।